Hello everyone, Amit Aura from EcoVisioner. I hope you have watched part 1 of Money and Credit. Today we'll be doing part 2 and we'll be completing this chapter in this part. What all topics are we covering today, students? We are covering formal credit in India. We are also talking about who gets what, किसको कितनी उधारी फॉर्मल से मिलती है और कितनी उधारी इनफॉर्मल सेक्टर से मिलती है. Then we'll also talk about some self-help groups of the poor which are effectively working in India and also the Grameen Bank of बांग्लादेश. तो हम आज क्रेडिट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे with more focus on formal and informal credit in India. So let us continue. Before we start formal and informal credit in India, we should first know what are the variety of credit arrangements in India. तो इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि the two students Rohit and Ranjan. So they have already finished reading about the terms of credit. So now they head directly to the village where most farmers and laborers are working. तो तीन लोगों को मिलते हैं. पहले वो श्याम लाल से मिलते हैं. They meet Shyam Lal first. So we'll be from three examples. We meet Shyam Lal and then we meet Arun and then we meet Rama. So we'll be knowing the various credit arrangements in the village. जो जो तरीके हैं उधार लेने के. Shamlal tells us that every season he needs loan for cultivation of his 1.5 acre land. Shamlal के पास 1.5 acre land है. उसकी requirement, what is his requirement for the loan? It is उसकी requirement है अपनी land को cultivate करने की. उसको seeds चाहिए होंगी, उसको input चाहिए होंगे. So he takes his money from this village money lender at an interest rate of 5%. अगर 5% महीने का हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 60% पर एनम विच इज क्वाइट अ हाई रेट. एंड यू सी ही इज टेकिंग द मनी फ्रॉम अ विलेज money lender. So here we know that he's not going to the bank, he's not going to formal sector, he's taking loan from the informal sector. Shamlal has been borrowing from agriculture traders in the village at interest rate of 3%. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit. एक तरफ से वो वहां से लेता है, एक तरफ वो ट्रेडर जो इनपुट प्रोवाइड करता है वो उनसे लेता है. और ये दोनों सोर्सेज जो श्यामलाल ने चूज किए हैं अपने क्रेडिट के लिए, ये दोनों सोर्सेज इनफॉर्मल सोर्सेज हैं. Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crops. एक कंडीशन पे ट्रेडर उसे क्रेडिट देता है कि वो अपना क्रॉप उस ट्रेडर को बेचेगा. This way the trader can assure that the money is repaid promptly. Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit. वो सस्ते में खरीदता है किसान से और उसको आगे जाके वो हाई प्राइस पे बेचता है. सो ट्रेडर को दोनों फायदे हैं. एक को 3% पर मंथ इंटरेस्ट पे देता है लोन श्यामलाल को, और साथ साथ वो श्यामलाल का जो क्रॉप्स हैं वो बहुत चीपर रेट पे खरीदता है. एंड द प्रॉफिट इज अर्नड बाय द ट्रेडर. सो फर्स्ट योर क्रेडिट अरेंजमेंट जो श्यामलाल का है वो दो लोगों से है, दैट इज मनी लेंडर एंड एग्रीकल्चर ट्रेडर. देन मूविंग ऑन टू अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर. अरुण हैज 7 एकड़ ऑफ लैंड. अरुण के पास भी लैंड है, that is 7 acre of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. उसको मिला है bank loan for cultivation. So now you can see the difference in the interest rate. This is 60% per annum taken a loan from the money lender, whereas जो अरुण ने लोन लिया है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है just 8.5% per annum, which is less than 1% a month. It can be repaid anytime in the next 3 years. Arun plans to repay the loan only after the harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes at cold storage and apply for fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. ये बैंक अच्छी फैसिलिटी दी है अरुण को. So here Arun has taken a formal loan from the formal sector, which is again a बहुत beneficial चीज है. और आपने चेक किया होगा in comparison the rate of interest is too low. Coming to Rama now, the third category. Rama is working in a neighboring field. She works as an agricultural laborer. उसकी अपनी land नहीं है. There are several months in the year when Rama has no work.
ये देखिए उसके पास काफी महीने टाइम, काफी टाइम उसके पास काम नहीं होता, एंड शी हैज टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। सो ये डेली एक्सपेंस के लिए अचानक इलनेस आ जाए घर में, खाने का अरेंजमेंट करने के लिए रमा डिपेंड्स ऑन हर एम्प्लॉयर, a medium landowner in Sonpur for credit. So she also goes to the landowner. तो here Rama is also going to the informal sector. अरुण फॉर्मल में था, श्यामलाल इनफॉर्मल में था, और आप देख सकते हैं कि रमा भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करती है। उसका इंटरेस्ट रेट अगेन वेरी हाई, दैट इज 5% पर month, that comes to again 60% a year. Most of the time Rama has to take fresh loan before the previous loan has been repaid. At present उसकी उधारी है 5,000 रुपए. Though the landowner does not treat her well, she continues to work for him since she can get loans from him when in need. तो रमा किस लिए इसके खेतों में काम कर रही है, इस लैंड ओनर के, बिकॉज उसके पास यही सोर्स है लोन लेने का. So Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employees. तो Rama जैसे लोगों के लिए हम कहा जाता है कि फॉर्मल लोन नहीं अवेलेबल है. सो ये तीन आपने देखी, 3 क्रेडिट अरेंजमेंट्स विच शोज कि फॉर्मल. एक और चौथी अरेंजमेंट है, वो बहुत ईजी है, दैट इज लोन फ्रॉम cooperatives. Again, besides banks, there are cooperatives also which gives you cheap credit in rural areas. कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं और वो मेंबर्स को चीप रेट पे लोन देती हैं. सो बोरोइंग एंड लेंडिंग कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस. पीपल ओपन देयर अकाउंट इन कोऑपरेटिव बैंक्स. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कृषक कोऑपरेटिव functions in a village not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmers as members. It accepts deposits from the members. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the banks. So these funds are used to provide loans. तो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है और आगे मेंबर्स कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं. तो दिस कैन कंटिन्यू विद अदर राउंड टेकिंग प्लेसेस, एंड दिस प्रोवाइड्स लोन टू परचेज इम्प्लीमेंट्स, लोन फॉर कल्टीवेशन, ट्रेड, फिशरी लोन्स. तो कोऑपरेटिव बहुत अच्छा काम कर रहा है इन रूरल एरियाज टू गिव लोन टू द मेंबर्स. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मल. नाउ कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स, आपने 2 एग्जाम्पल देखे, कोऑपरेटिव और कृषांक. यहाँ पे कृषांक कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक जिसने अरुण को लोन दिया था, वो दोनों फॉर्मल, और बाकी दोनों श्यामलाल और रमा ने जो लोन लिए हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन है. सो लेट अस सी व्हाट फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया. ये बहुत सिंपल है, आपको ये पाई चार्ट से पता लग जाएगा कि अगर पर ₹1,000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड लोन जाता है क्रेडिट, तो कितना लोन कहाँ से आ रहा है. 33% मीन्स 333 रुपीज लोन कहाँ से आ रहा है, दैट इज थ्रू मनी लेंडर्स. 1% थ्रू लैंडलॉर्ड्स इट बिकम्स 34%. 8% थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इट बिकम्स 42%. तो 42% लोन अभी भी, and 2% also, I think, yeah, 2% from other institutional, non-institutional agencies. So you can see 33 plus 1 is 34, 34 plus 8 is 42, and 44, 44% लोन अभी भी क्रेडिट जो है वो रूरल एरियाज में, वो क्रेडिट जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल और इनफॉर्मल सोर्सेज से आ रहा है. कमर्शियल बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स ईच हैविंग 25% share, and government directly is giving 1%, and other institutional agencies are giving 5%. So overall तो इम्प्रूवमेंट हुई है 2012 में तक आते आते, क्योंकि पहले तो और भी कम था. You can see 56% of the loan comes from formal sector, and still 44% rural loan comes from informal sector. Informal sector के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, that it charges a very high rate of interest, and it also exploits the person who has taken the loan. So what is the role of very important topic, what is the role of RBI? RBI Reserve Bank of India supervise करता है formal loan को rural areas में. We have seen that banks maintain a minimum cash balance out of deposit they receive. RBI monitors the banks in actually maintaining this CRR, cash reserve. Similarly, the RBI also see that bank give loans to just not profit-making businesses. They also give to small cultivators. So they keep a watch on commercial banks
कि ये लोन वो गरीब आदमी को भी दे रहे हैं कि नहीं, एंड आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इट कीप्स अ सुपरवाइजर है वो उसका, इट कीप्स अ वॉच ऑन कमर्शियल बैंक्स. So RBI plays a very important role. Reserve Bank of India, our central bank, plays a very important role in rural credit also. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. They can lend at whatever interest rate they desire or they want, they choose. There is no one to stop them for using unfair means to get their money back. वो गुंडागर्दी भी करते हैं, पर एक बात बड़ी प्रॉब्लम रहती है इनफॉर्मल सेक्टर में, हमारी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है इंटरेस्ट पे करने में, और हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. डेट ट्रैप मीन्स जब हम पिछला लोन पे नहीं कर पाते हैं एंड डेट बढ़ता रहता है, तो अगला लोन इंटरेस्ट भी लोन बन जाता है. सो दैट टाइम द पर्सन एक्चुअली गेट्स ट्रैप्ड इनटू डेट ट्रैप, दैट इज कर्जे के जाल में वो फंस जाता है. सो सजेशंस तो यही है कि कोऑपरेटिव्स और बैंक्स का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का और बैंक्स का रोल रूरल एरियाज़ में बढ़ाया जाए. ओनली एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ है फॉर द अर्बन हाउस होल्ड एंड रूरल हाउस होल्ड की हम बात करें और पुअर और रिच की बात करें तो बहुत इनइक्वालिटी है. अगर हम ये इफ यू सी दिस पाई चार्ट्स, the 4 pie charts we have, if we talk about poor households, if we talk about poor households in the urban areas, poor households, 85% poor household को बैंक से लोन नहीं मिलता. दे स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, एंड ओनली 15% ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड, only 15% get the loan from formal sector. When we come to people with few assets, मैं थोड़ा सा आते हैं मिडिल क्लास के ऊपर. So there also 53% still depends on informal loans and only 47 get formal. और थोड़े से अमीरी पे आते हैं, हाई मिडिल क्लास, थोड़े से हाई मिडिल पे आते हैं, तो यू कैन सी दिस रेट इज इंक्रीजिंग. फॉर्मल सेक्टर में यहाँ इनइक्वालिटी हो गई, जितने आप अमीर हैं आपको उतना लोन, जबकि ऑपोजिट होना चाहिए, जितने हम अमीर हैं उतना लोन हमें इजीली मिल रहा है. 72% वेल ऑफ हाउस होल्ड गेट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर एंड ओनली 28% फ्रॉम इनफॉर्मल. एंड यू सी रिच हाउस होल्ड्स, 90% of rich people easily get loans from formal sector. So that means banks and cooperative banks and all the formal sector is also favoring the rich. That is why the poor gets maximum of its loan from informal sector. A lot of inequality in formal loans. You can see this pie chart. कमिंग टू द सेम टॉपिक जो हमने अभी बात की थी, क्या करना चाहिए, व्हाट इज नेसेसरी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव क्या करें. नेसेसरी ये है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव अपनी लेंडिंग पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बढ़ाएं, सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स कम हो जाए. सो मोर बैंक शुड ओपन इन रूरल सेक्टर, मोर कोऑपरेटिव शुड लेंड टू द रूरल सेक्टर. Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. आपने देखा 90% रिच के पास फॉर्मल लोन मिल रहा है, तो ये इनइक्वालिटी कम करनी है और रूरल एरियाज में भी लोन ज्यादा देना है. सो 2 रिफॉर्म्स कैन टेक प्लेस इन दिस क्रेडिट और लोन एक्टिविटी. कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट SHGs. ये हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो स्मॉल ग्रुप्स हैं रूरल इंडिया में जो अपने पैरों पे खुद खड़े होते हैं. सो जिनको बैंक लोन नहीं देता डॉक्यूमेंट्स की वजह से और कोलैटरल की वजह से, गरीब को लोन नहीं मिल पाता, तो एक बहुत अच्छा तरीका है टू गेट लोन फ्रॉम देयर ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो इनफॉर्मल लेंडर्स तो ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ द पुअर. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव कम a long way now and they have helped. What is a self help group? Very easy. It is the idea to organize the rural poor. अगर वो चाहें तो they collect their own savings. A typical SHG के पास 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजली लेडीज फैमिली की, रूरल विमेन आपस में नेबरहुड में. सो दे सेव आराम से, वो 25 रुपए से लेके 100 रुपीज़ तक सेव करते हैं वीकली एंड मंथली.
or more depending on the ability of the people to save. Members, उसी के members जो 15-20 members हैं, they can take a small loan from their SHG to meet their short term needs. और ग्रुप चार्ज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत लो होता है. It is very less than the what money lender charges. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible. ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लाइन है बच्चों. It becomes eligible to get the loan from the bank. तो आगे जाके बड़ा लोन SHG को मिल जाता है. SHG can get a loan from a formal bank. तो अगर SHG अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके लोन्स वापस आ रहे हैं अपने, so loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self employment opportunities in the village. तो ये सारे मिलके एक जॉइंट लोन ले सकते हैं बैंक, अगर उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और वो अपने एरिया में अच्छी तरह से आगे फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं यूजिंग दीज लोन्स. दे कैन एक्वायर एसेट, दे कैन टेक स्मॉल लोन्स फॉर रिलीजिंग देयर मॉर्गेज लैंड, दे कैन मीट देयर वर्किंग कैपिटल, बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सब खरीदना इजी होता है. अपने पैरों पे वो खुद खड़े हो सकते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर like we have lakhs of self help groups in India now. So lack of collateral जो नहीं हो पा रहा था उसको ओवरकम कर दिया SHGs ने. पुअर women ने बड़ी इजीली ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को. एंड नाउ in many areas in India this is a very good instrument to fight rural poverty. ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको पिक्चर में दिख रहा है. इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात. ये सब मीटिंग कर रहे हैं. they're all meeting and discussing their requirements and their accounts in the SHG. As low as 25 rupees contribution कर. Similar thing happened in Grameen Bank of Bangladesh के example से. It happened in Bangladesh. बहुत famous Nobel Prize winner for peace in 2006, Professor Muhammad Yunus का किया हुआ. He was the founder of Grameen Bank. Amazing record, amazing performance. Grameen Bank of Bangladesh, one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. Started in 1970s, you can imagine, as a small project. Grameen Bank in 2018, it has around 9 million members. That means 90 lakh. And about 81,600 villages में spread हुआ across Bangladesh, which actually provides loan to the poor women. Poor section of society, these borrowers have proved that not only poor women is a reliable borrower, but they can start and run variety of small incomes generating activities successfully. तो उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से छोटी छोटी एक्टिविटी जनरेट की जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और इन लोगों की रेगुलर इनकम जनरेट हो गई. तो दैट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट. अगेन इन मेनी एरियाज दिस कैन टेक प्लेस. I hope students you have understood now money and credit, how this works. गांव में उधार कहाँ से आता है, शहर में फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है. बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज होते हैं वो फॉर्मल होते हैं और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स ये सब इनफॉर्मल में आते हैं. इनफॉर्मल बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, पर वो लोन थोड़ा ईजी मिल जाता है जान पहचान से. और फॉर्मल में प्रॉब्लम आती है पेपर वर्क की. तो दैट इज वाई मैनी पीपल डोंट गो फॉर फॉर्मल लोन्स. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट्स जो वहाँ पे हैं. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कीप्स ऑन ट्राइंग. एट लोकल लेवल द मिनिस्टर शुड सी दैट एंड द पंचायत शुड सी दैट दिस बेनिफिट ऑफ फॉर्मल लोन शुड ऑल्सो गो टू द पुअर. तो यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है. लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पीपल हु आर इन्वॉल्व एट ब्लॉक लेवल. तो अगर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो गरीब को लोन मिलेगा, वरना उसका एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा. फॉर्मल लोन्स को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है. इट शुड रीच टू द पुअर पर्सन. कोलैटरल की नीड कम हो जानी चाहिए, पेपर वर्क मिनिमाइज होना चाहिए, जिससे कि गरीब लोन लेके प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सके. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स go on the app, go to the store, go to the study material, practice your free online MCQ based test, subscribe to our YouTube channel and get all the updates of CBSE, and register yourself for the EcoVision International Olympiad. Form is there on the app, and you can also buy study material and app classes of other subjects from your app store. For any other query, you can contact us at 9891203546
or you can mail us at ecovisioner@gmail.com. Thank you. Take care. Be blessed.